بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ سب سے پہلے مولا علی مشکل کشا کا قول ہے کہ جو بھی تمہیں ایک لفظ سکھائے وہ تمہارا استاد ہے اور اس کا احترام ضروری ہے۔ بے وقوف ہے دنیا میں وہ انسان جو کتاب سے محبت کرے اور استاد سے نفرت کرے۔ سب سے پہلے کائنات میں عظیم کتاب، معتبر کتاب، لا ریب کتاب قرآن پاک ہے، اور اس عظیم کتاب کے جو استاد ہیں وہ 14 معصومین ہیں۔ استادوں کے بغیر یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کائنات میں سب سے بڑے اور پوری انسانیت کے استاد یہ 14 ہیں۔ اور ظاہری علوم کے حوالے سے جیسے نسبی علم ہے یا کسی بھی فیلڈ کا کوئی علم ہے، ہر علم کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی پہلے ایسے جعلی پیروں فقیروں کے پیچھے ٹھوکریں کھاتے ہمیں تو احساس ہے نا اس بات کا، جب ایک علم والے اور حقیقی استاد کے پاس پہنچے پھر جا کے ہمیں احساس ہوا کہ استاد کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو استاد محترم کیسر احمد BA آف کراچی، اس کے بعد علامہ شہید محمد رفیق آف لاہور، جس محترم کی محنت اور کاوش سے آج ہم جو کچھ بھی ہیں علامہ شہید بابا کی محنت سے ہی ہیں۔ اور عجیب بات کہ عملیات سے ہٹ کر کے استاد نے ہماری روحانی تعلیم و تربیت بھی کی۔ استاد سے پہلے ہم اتنی جو اہل بیت سے جو ہے ذاکری وغیرہ یا خطاب وغیرہ کا جو طریقہ ہمارا نہیں تھا، یہ استاد محترم کی تعلیم سے تھا۔ اس سے پہلے نہ ہم عربی جانتے تھے، نہ فارسی جانتے تھے، نہ اردو جانتے تھے۔ یہ ساری جو محنت ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، استاد محترم کی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ استاد کیا ہوا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے استاد محترم کو خاص اپنے دعا میں یاد رکھتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی میرے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، شاگرد ہیں، ان کو بھی ہم یہی ہدایت کرتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ ہمارے استاد محترم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ خزانہ اس بزرگ کا ہے۔ یہ محنت، یہ مشقت، یہ کاوش، یہ تعلیم، یہ تربیت اس بزرگ کی ہے۔ اس حوالے سے آج میں آپ کو جو چند تحفے دینا چاہتا ہوں، یہ خصوصاً جو میرے تحفے ہیں مولا حسین کو چاہنے والے جو ہیں ان کے لیے ہیں۔ مولا حسین کے جو عزادار ہیں، پنجتن پاک کے جو ماننے والے ہیں، ان کے لیے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی ایسی مشکلات میں پھنس جاتا ہے کہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ مثلا دشمنوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، دشمنوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے، یا کسی بھی وحشی جانور کے گھیرے میں آ جاتا ہے، یا کبھی ایسی مشکلات میں آ جاتا ہے مثلا کہ مظلوم ہے اور کوئی کسی آفیسر کے پاس یا کسی زمیندار کے پاس، حاکم کے پاس، یا کسی بھی کورٹ وغیرہ میں مقدمہ ہے اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور ہے بھی مظلوم، اس کو فوراً جو مدد چاہیے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں، فوراً ہی آپ کی مدد ہو جائے گی۔ یقین رکھیں، فوراً ہی مدد ہو جائے گی۔ جب بھی اس قسم کی مشکلات آئے، آپ پورے یقین اور اعتقاد سے مولا علی مشکل کشا کو پکاریں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ربائی دیتا ہوں، انتہائی بہترین چیز ہے۔ آپ دل ہی دل میں یہ پڑھنا شروع کریں، مولا کو مدد کے لیے پکاریں، زمانہ برسر جنگ است یا علی مدد دے۔ پھر سنیں، زمانہ برسر جنگ است یا علی مدد دے، کمک بغیر تونگ یا علی مدد دے، کشور کار دو عالم بے یک اشارہ تست، بکار من چہ درنگ است یا علی مدد دے۔ یہ انتہائی بہترین چیز ہے۔ جتنی بار آپ پڑھ سکیں آپ پڑھتے رہیں دل ہی دل میں،
किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, जब भी मुश्किलात आए आप इस चीज़ को पढ़ें। एक बार ही आपको तवक्ल से, यकीन से पढ़ने का मौका मिल जाए ना, मौला की मदद किसी भी वसीले से पहुंच जाएगी। इस चीज़ को महफूज रखना। और दूसरा जो है, मैं आपको इस्तिखारा हसनैन को देना चाहता हूँ। ये मशहूर है, मारूफ़ है, इस्तिखारा हसनैन के नाम से। इंतहाई अजीब व गरीब इस्तिखारा है, आप हैरान रह जाएंगे और आपकी हैरत की दंग हो जाएगी। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप बाद नमाज ऐशा हसनैन शरीफ का जो न्याज है मिठाई वगैरह पर फातिहा 7 बार फातिहा पढ़ करके फिर किसी मिठाई पर मौला हसन हुसैन का न्याज बच्चों में तकसीम करें। अगर बच्चे ना हो तो बड़ों में भी तकसीम कर सकते हैं और आप उसमें से ख़ुद भी खा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सुर्ख या सब्ज़ मुसला बिछा करके उस पर बैठना है। उस मुसले पर बैठ करके आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 1 बार आयतल कुर्सी पढ़ें और 3 बार सूरह अखलास पढ़ें। उसके बाद आपको ये अमल पढ़ना है, 11 बार ये अमल पढ़ना है जो अब मैं बता रहा हूँ। फरियाद 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 बदरगाह तू बदोस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बदोस्ती अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम व हसन मुजतबा व हुसैन शहीद करबला आँचा मतलूब मीदारम ब अंसारम रसां। ये आपको 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 रकत नमाज नफल हाजत इस्तिखारा पढ़नी है। पहली रकत में 7 बार सूरत फातिहा पढ़ें और 1 बार सूरह अखलास पढ़ें। जब दूसरी रकत में आप सूरह हमद पहली बार पढ़ें, जब आप इस आयत पर पहुँचें इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इसकी तकरार शुरू करें। 111 बार इसकी तकरार करें। आपको अपना मकसद जहन में रखना है। अब क्या होगा कि आपका जिस्म घूमेगा, इतना घूमेगा जब तक आप ये तकरार नहीं छोड़ेंगे, आप किसी भी तरह इस घूमते हुए जिस्म को रोक नहीं सकते। दुनिया का कोई भी पहलवान आपके इस घूमते हुए जिस्म को रोक नहीं सकता है। आपको 111 बार पढ़ना है इस आयत को, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। इसकी 111 बार तकरार करनी। आपका जिस्म घूमेगा। अगर दाएं तरफ आपका जिस्म घूमे तो फिर आपको इस काम की इजाज़त है। अगर बाएं तरफ आपका जिस्म घूमे फिर आपको इजाज़त नहीं है। उसके बाद जब आपको जवाब मिल जाए फिर आगे आप आयत पढ़ करके सूरह फातिहा को मुकम्मल कर, उसके बाद सूरह अखलास पढ़ करके अपनी नमाज को कामिल करें। बस इस्तिखारा कामिल हो गया। और ये इस्तिखारा जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करना है। मसलन आप किसी कारोबार में किसी को शरीक करना चाहते हैं, आप इसी इस्तिखारा इहदिन सिरातल मुस्तकीम की मानी क्या है कि सीधा रास्ता, अली के इश्क वाला सीधा रास्ता। ये मौला अली मुश्किल कुशा के जो ग़ुलाम हैं, मवक्कल हैं, ये आपको जवाब बताएंगे आपका जिस्म घुमा करके ये आपको काम करना चाहिए या न करना चाहिए। इंतहाई अजीब व गरीब और 100% दुरुस्त जवाब देने वाला इस्तिखारा है। आपको जायज़ काम के लिए, मसलन आपको ये पूछना है कि फुल्ला आदमी से रिश्ता करना चाहता हूँ, करूँ या ना, आपको ये इस्तिखारा हसनैन 100% सही जवाब देगा। कोई भी दुनिया का काम हो, सफ़र के हवाले से हो, मुकदमा के हवाले से हो, आप इस इस्तिखारा से पूछ सकते हैं कि इसमें मुझे कामयाबी होगी या नहीं, हाँ ये काम करूं या ना। अगर दाएं तरफ जिस्म घूमे आपको इजाज़त है इस्तिखारा हसनैन की, अगर बाएं तरफ जिस्म घूमता है फिर आपको इजाज़त नहीं है। अगर कहीं भी ना घूमे तो फिर आपको अख्तियार है इस काम में, जो आपकी मर्ज़ी हो वैसा करें, यह दरमियाना रहेगा। ठीक है, ये इस्तिखारा आप जहन में रखें। और जो तीसरी चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ वो क्या है कि नक्श 14 मासूमीन का नक्श है। ये जो नक्श है पहली मुहर्रम शरीफ से लेकर के 14 मुहर्रम तक, जुमरात का दिन हो या जुम्मा का दिन हो, आपको पहली सायत में लिखना है। और लिखने से पहले आपको क्या करना है कि 7 बार कौसर,
7 बार सूरह कदर, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ करके 14 मासूमीन को हदिया करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप 14 मासूमीन का न्याज मिठाई पर बच्चों में तकसीम करें। उसके बाद आप नक्श लिखें, वो नक्श ये है, आप तरतीब से इस नक्श को लिखना है। ये 14 मासूमीन के अस्माए गिरामी का नक्श है, इंतहाई बाकमाल और मोतबर नक्श है। ये देखें, ये नक्श है। अब ये नक्श आपको चाल से लिखना है, इसकी आतशी चाल है, मैंने आपको पहले समझाया है। पहले आपको ऊपर वाली सीधी लकीरें खींचनी है, ये वाली लकीरें ऊपर वाली खींचनी है। उसके बाद आपको ये लकीरें खींचनी है, ये मैंने आपको पहले समझाया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस नक्श के ऊपर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है। उसके बाद जो 4 मवक्कल हैं, जैसे जिब्राइल, इज़राइल, मिकाईल, इसराफील, 4 मवक्कल के नाम लिखने हैं। उसके बाद जो कूनों पे इसके मवक्कल हैं, शमकाफील, शफ़क़याईल, लुबियाईल, फ़क्तलशाईल, ये मवक्कलों के नाम लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कौलहू अल हक़ वलहू अल मुल्क, 4 कूनों पर जो दायरा चढ़ा हुआ है, ये आपको अबारत लिखनी है। उसके बाद आपको चाल से ये नक्श पुर करना है। बात समझ में आ गई? हर काम तरतीब से करना है। पहले ऊपर वाली लकीरें बनानी है, फिर दाएं बाएं लकीरें बनानी है। उसके बाद आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखनी है। उसके बाद मवक्कल के नाम लिखने हैं। उसके बाद 4 कूनों पर जो मवक्कल के नाम हैं वो लिखने हैं। उसके बाद आपको जो अबारत है, अल हक़्क़ु कौलहू, ये जो अबारत है ये आपको लिखनी है। उसके बाद आपको पहले खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, आतशी चाल से ये नक्श पुर करना है। हालांकि जो बांधने वाले नक्श हैं गले में वो बादी चाल के होते हैं, मगर ये नक्श ज़रूरी है कि आतशी चाल से ही आपको गले में बांधना है। मोम जामा करके चांदी के तावीज़ में लिपेट कर 14 मासूमीन के इस्माए गिरामी लेकर के अलकाब के साथ इस नक्श पे दम करने हैं। ये नक्श आपको कौन सा काम देगा? छोटे बच्चों की बद नज़र के लिए इंतहाई बेहतरीन है। छोटे बच्चों को पहनाएं और जिनात और जादू की हिफाजत के लिए इंतहाई बेमिसाल नक्श है। बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं मिलता, रोज़गार में बंदिश है, इस हवाले से भी आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस नक्श को अपने घर में लगाएं तो किसी की भी बद नज़र, शयातीन की नज़र, जिनात, जादू वगैरह का असर नहीं होता। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। इस नक्श को मामूली मत समझिएगा, ये इंतहाई कीमती नक्श है, इससे आप फ़ायदा उठाएं। यह खसूसी तोहफ़ा है मौला हुसैन के अज़ादारों के लिए। आपको आफात से, हादसात से, दुश्मनों से भी ये नक्श महफूज रखेगा। इसको आप ज़रूर लिखें और अपने चांदी में लिपेट करके अपने गले में पहने। ये ख़ास 14 मासूमीन के अस्माए गिरामी का नक्श है, मौला हुसैन के अज़ादारों के लिए, पंजतन पाक के चाहने वालों के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। और उसके बाद जो मैं आपको आखिरी तोहफ़ा देना चाहता हूँ, खसूसी हमसे इसकी फरमाइश भी होती है, बाबा जी किसी मासूम की ज़ियारत का कोई अमल या वजीफ़ा है? बेशक है। बस इंसान का शौक़ हो, अहल बैत से मोहब्बत हो, नीयत नेक हो, रज़क हिलाल हो, बेशक हो सकती है, क्योंकि वो ख़ुद चाहते हैं कि हम अपने चाहने वालों के पास जाएं और उनको हिदायत करें, उनको नसीहत करें, उनका ईमान बढ़ाएं। और ये कई जो रिवायतों में मिलता है, कितने चाहने वालों के पास आइमा मासूमीन आए हैं, उनको हिदायत फरमाई है। जो मैं आज आपको अमल देना चाहता हूँ, ये इंतहाई मुजरब बेखता अमल है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 14 छटाक चावल लें अच्छे वाले, और उस 14 छटाक चावल पर ज़र्दा पका करके आप 14 मासूमीन का न्याज छोटे बच्चों, जो मासूम बच्चे हैं, उनमें तकसीम करें।
फिर आपको क्या करना है कि नौचंदी जुमरात हो या जुम्मा की रात हो या पीर की रात हो, इन 3 रातों में से कोई भी रात हो, जुमरात, जुम्मा या पीर की रात, आप सबसे पहले पाक साफ लिबास पहन करके और खुशबू लगा करके मुसल्ला पर बैठ करके एक तस्बीह दुरूद शरीफ और एक तस्बीह ये अमल पढ़ें, बरकत बीबी फ़ातिमा मदद शाह अली कुव्वत मोहम्मद मुस्तफ़ा हसन हुसैन वली। फिर सुने, बरकत बीबी फ़ातिमा मदद शाह अली कुव्वत मोहम्मद मुस्तफ़ा हसन हुसैन वली। इसकी एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, पंचतन पाक के सदक़े, 14 मासूमीन के सदक़े मुझे फ़ुला मासूम की ज़ियारत नसीब हो। बस ये दुआ मांगें। 21 दिनों या 41 दिनों, ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिनों में जिस मासूम की ज़ियारत के लिए आपने अल्लाह से दुआ मांगी है, उस मासूम की ज़ियारत हो जाएगी और आपको ख़ुसूसन उनकी ज़बानी हिदायत हो जाएगी। ये आपको न्याज हर हफ्ता देनी है। मसलन आपने जुमरात अमल को शुरू किया है तो हर जुमरात को न्याज देनी होगी इस चावल पर। अगर आपने जुम्मा को अमल शुरू किया है तो हर जुम्मा को न्याज देनी होगी। अगर आपने पीर को अमल शुरू किया है तो हर पीर को आपको न्याज देनी होगी। इंशाअल्लाह ताला आपको जिस मासूमीन की आपने जो दुआ मांगी आपको ज़ियारत हो जाएगी और आपको उनकी तरफ से हिदायत भी हो जाएगी। इंतहाई मुजरब और मोतरब और बेख़ता अमल है। ये आसमानी चीज़ें हैं, ये कमाल की चीज़ें हैं जो बुज़ुर्गों के वसीले ही ऐसी चीज़ें हम तुम तक पहुंचती हैं। आप इससे फ़ायदा उठाएं और आगे मौला हुसैन की जो अज़ादारी के दिन आएँ, ये इंसानियत का फ़रीज़ा है। देखेंगे, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मौला अली से मोहब्बत करना ये अल्लाह से किया हुआ वादा है। इस दुनिया में इस वादे को निभाना है और पाक बीबी का एहतराम करना, पाक बीबी के दुश्मनों पे लानत करना हर गैरतमंद इंसान का अव्वल फरीज़ा है। और मौला हुसैन का जो गम है, मौला हुसैन की जो अज़ादारी है, वो इंसानियत का फरीज़ा है। ये किसी मज़हब से, किसी मिलत से, किसी कौम से ये ताल्लुक़ नहीं रखती। जो इंसान है, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो मौला हुसैन का गम करे, मौला हुसैन की अज़ादारी और मौला हुसैन की मातमदारी करे। इसलिए मैं जितनी भी चीज़ें आपको दी हैं, इसलिए आपको तो पता है मेरा हदिया ये है कि आप एक बार कमेंट में लिखें, पाक ज़ारा तेरे दुश्मनों पे लानत, पाक ज़ारा तेरे दुश्मनों पे लानत। मेरी दुआ आपके साथ होगी और आप मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद।